Guys, welcome to my YouTube channel Satya Tutorial. The OTT paper 1 and paper 2 ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଲ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା। କ'ଣ ବିଷୟ ନା କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କୋଷ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏବଂ ଗାଠନିକ ଏକକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ MCQ ତାର 30ଟା MCQ ଟପ୍ 30ଟା MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ଫର୍ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ 2। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କ'ଣ ଦେଲା, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ ସେଲ୍। ସେଲ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ହେଲା। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ 1665 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୃତକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୃତକୋଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କେଉଁ ଗଛର? ଓକ୍ ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା। କେଉଁ ଗଛ ଥିଲା? ଓକ୍ ଟ୍ରି ହେଲା। ଓକ୍ ଟ୍ରିର ସେ କର୍କ ସେଲ୍ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସେ କର୍କ ସେଲ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ମହୁ ଫେଣା ସଦୃଶ ଦେଖା। ସେଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ମହୁ ଫେଣା, ଏଗୁଡ଼ା କୋଠରୀ କୋଠରୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। କୋଠରୀ କୋଠରୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ନା ସେଲ୍ କହିଲେ। ଏ କୋଠରୀ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲେ? କିଏ ସେଲ୍କୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1665 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଗଛରୁ ସେଇଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନା ଓକ୍ ଟ୍ରି। କେଉଁ ସେଲ୍ରୁ ନା କର୍କ ସେଲ୍। ସେ ସେଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଡେଡ୍ ନା ଏଲେଭ୍? ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଥିଲା। ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଥିଲା। ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ତାର ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ନଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ମାନେ ଆଦିଜୀବକ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କହିବା ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ହେଲା। ସେଲ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ କିଏ? ସେଲ୍ ଥିଓରି କିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ? ସେଲ୍ ଥିଓରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ନା ସ୍ଲିଡେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ ହେଲା। ସ୍ଲିଡେନ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସ୍ଲିଡେନ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ବୋଟାନିଷ୍ଟ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ବୋଟନିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସ୍ଲିଡେନ୍ ଜଣେ ବୋଟାନିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସ୍ୱାନ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱାନ୍ ଜଣେ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ପଚାରିପାରେ। ସ୍ୱାନ୍ ଜଣେ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା। ଇଏ ବୋଟନିଷ୍ଟ କେଉଁ ବୋଟନିଷ୍ଟ ନା ଜର୍ମାନ ବୋଟନିଷ୍ଟ, ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା। ସ୍ଲିଡେନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଲ୍ ଥିଓରିରେ? ସ୍ଲିଡେନ୍ କହିଥିଲେ ଖାଲି ମାନେ ସ୍ଲିଡେନ୍ ବୋଟନିକୁ ଖାଲି ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଖାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ ହେଲା। କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଲ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆଉ ସେଲ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଥ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟାଙ୍କ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା କହିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱାନ୍ କହିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନା କ'ଣ ସ୍ଲିଡେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱାନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ ହେଲା। ସ୍ଲିଡେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଲ୍ ଥିଓରି? ମନେ ରଖ, ସ୍ଲିଡେନ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ସ୍ଲିଡେନ୍ 1838 ମସିହା ହେଲା। ସ୍ୱାନ୍ 1839 ମସିହାରେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଥିଲେ ନା ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ରୁଡଲଫ୍ ଭିର୍ଚୋ ହେଲା। ରୁଡଲଫ୍ ଭିର୍ଚୋ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏଡ଼ କରି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସେଲ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଲିଡେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ କହିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ରୁଡଲଫ୍ ଭିର୍ଚୋ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି ଆଣିଲେ, ଓମ୍ନି ସେଲୁଲା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସେଲ୍ରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା କ'ଣ ନା ଓମ୍ନିସ୍ ସେଲୁଲା ଇ ସେଲୁଲା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କହିନି ତ ଟିକେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଭିର୍ଚୋ। ୟା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ବା ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ରୁ ଆସିଥିବ। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦର ସେଲ୍, ଏଇଟା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଡଟର ସେଲ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ବା ଡଟର ସେଲ୍। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ କେଉଁଟା? ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ସେଲ୍। ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ୟାର ସାଇଜ୍ କେତେ ନା ୟାର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି, ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ ନା 0.1 to 0.3, এটা କାଟିଦିଅ ହେଲା। 0.1 to 0.3 ମାଇକ୍ରୋମିଟର। ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ 10⁻⁻⁶ ମିଟର ହେଲା। ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ କିଏ
ना माइकोप्लाज्मा है बुझला कौन कहली। तापर आसला तो प्रोकैरियोटिक सेल कोडा लैक हम प्रोकैरियोटिक सेल माने कौन प्राक निष्क्रिय कोष माने तार कौन ना न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आब्सेंट थो है सेटा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल किए किए ना बैक्टीरिया हूँ ओनली गोटे किंगडम बा प्रोटिस्टा किंगडम रू आसी प्रोटिस्टा नु तो मोनेरा किंगडम रू आसी बैक्टीरिया सेटा खाली प्रोकैरियोटिक सेल रे जीव को किंगडम अंडर रे जीव ना मोनेरा किंगडम अंडर रे जीव मोनेरा है किंगडम मोनेरा है बुझला कौन कहली। तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पावर हाउस ऑफ द सेल सेल रो को पार्टा एनर्जी तैयारी करे बा एटीपी तैयारी करे है सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया पार्टा एटीपी तैयारी करे है एटा समस्त छोट पिला पर्यटन जानते माइटोकॉन्ड्रिया कौन तैयारी करे ना एटीपी तैयारी करे। एटीपी रो फुल फॉर्म हो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर्डिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट को PO4 3 माइनस लिख देनी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मुझे लिख देनी है। पावर हाउस ऑफ द सेल एडेनो माने माइटोकॉन्ड्रिया जोटा कि कौन तैयारी करे माइटोकॉन्ड्रिया भीतर कौन तैयारी हुए ना एटीपी तैयारी हुए। जदि तुमको पचार था एनर्जी करेन्सी कोटा एनर्जी करेन्सी है सपोज तुमको पचार था कौन ना एनर्जी करेन्सी कोटा एनर्जी करेन्सी बा शक्ति मुद्रा कोटा पचार था तुम आंसर कौन दे था ना एटीपी। पावर हाउस कहले माने शक्ति केंद्र कोटा ना माइटोकॉन्ड्रिया आ एनर्जी करेन्सी कोटा एटीपी बुझला कौन कहली। तापर आसला कौन 7 नंबर क्वेश्चन आसला ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस पे को ऑर्गेनेली आवश्यक करे को ऑर्गेनेली साहाय्य करे ना राइबोसोम है राइबोसोम कौन करे आखि बुझी मन रखिदेव ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एटा बहुत सारा बहु एग्जाम रे एटा पड़ी है राइबोसोम होची कौन करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करे बुझला कौन कहली। तापर आसला कौन सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कोडा सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कोडा एटा हूँ ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर लाइसोसोम। लाइसोसोम भीतर अनेक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए लाइसोसोम भीतर अनेक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए है से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फल कौन हो जो सेल गोटे ऑर्गेनेल डैमेज हो सेटा को रिपेयर करने कौन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यूज हुए बेले बेले कौन हो माने से निजर ऑर्गेनेल को डैमेज कर दिए से कौन सुइसाइडल बैग निज गोड़ निजे कुराड़ी मारे है यहाँ सुइसाइडल बैग कोडा ना लाइसोसोम बुझला कौन कहली। तर असला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन कौन रे हेल्प करे ना रेस्पिरेशन रे हेल्प करे ना प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस रे ना फोटोसिंथेसिस ना डाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर कौन ना प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस रे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करे। दुई प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी गोटे हूँ SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे RER गोटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा कौन करे मन रखदेव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा कौन करे ना लिपिड सिंथेसिस करे कौन करे लिपिड सिंथेसिस करे है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जेहेतु राइबोसोम थी सी कौन सिंथेसिस करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करे बुझला कौन कहली नोट कर आराम से रख दियो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करे प्रोटीन किए सिंथेसिस करे ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस किए करे ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा हूँ कद ना RER एटा कौन किए करे ना RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुझला कौन कहली। तापर आसला कौन स्मूथ देख क्वेश्चन जहाँ कहूँ रिपीट हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस कौन सिंथेसिस करे स्मूथ रे राइबोसोम नहीं से कौन सिंथेसिस करे लिपिड सिंथेसिस करे। ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर है। तापर आसला गोल्गी एपार्टस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्गी एपार्टस को किए डिस्कवर करते यार ना माने क्वेश्चन ना तार आंसर लुचिक रही है गोल्गी देख गोल्गी कौटी अच्छी एठी गोल्गी नहीं एठी गोल्गी नहीं एठी गोल्गी नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर कौन ना केमिलो गोल्गी ना अनुसार ये कौन है ना केमिलो गोल्गी ना अनुसार गोल्गी एपार्टस केते मसीह से आविष्कार करते ना 1898 मसीह केमिलो गोल्गी एपार्टस को आविष्कार करते बुझला कौन कहली। गोल्गी एपार्टस काम कौन जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस किए करिवो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करिवो से ताको पैकेजिंग करिवार हेल्प करिवो से ताको कौन करिवो ना पैकेजिंग करिवारे किए हेल्प करिवो ना
गोल्गी आपाटसटा ताको पैकेजिंग करिवार हेल्प करियो प्रोटीन आउ लिपिड को कौन पैकेजिंग करियो ना प्रोटीन एंड लिपिड को से कौन करिवो प्रोटीन आउ लिपिड को कौन करिवो प्रोटीन आउ लिपिड को सेटा कौन करिवो ना पैकेजिंग करिवार हेल्प करियो किए ना गोल्गी आपाटस किए बाहर करथिला ना कैमिलो गोल्गी आ केते मसिया ना 1898 मसिया जेते कि इंपोर्टेंट जिनिस गोटे क्वेश्चन तुमको 4-5टा क्वेश्चन एठू बाहरी आछला बुझला कौन कोई तहला 12 नंबर क्वेश्चन कौन देला सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड ऑफ पेप सेल्युलोज रे प्लांट जेते कि भी वर्ल्ड ऑफ प्लांट अछि हला प्लांट किंगडम रे जेते कि प्लांट अछि एक्सेप्शन किछ नै हला सेल्युलोज समस्तकर सेल वॉल रे समस्त सेल्युलोज समस्त सेल वॉल कंपोजिशन सेल्युलोज आ काइटिन टा कार कंपोजिशन सेल वॉल कंपोजिशन ना जति कि फंजाई रहिले हला जति कि फंजाई रहिले समस्त सेल वॉल रो कंपोजिशन को कोन ना काइटिन हला पेप्टिडोग्लाइकन माने जति कि बैक्टीरिया रहिले हला जति कि बैक्टीरिया रहिले समस्त सेल वॉल रो कंपोजिशन को ना पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन तो कार नुए छाड़ो हला तसला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कौन ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर कहीं ना एटा को सिंगर आउ निकोलसन एंड निकोलसन 1972 ख्रीष्टाब्द रे 1972 मसीह गोटे थियोरी देथिले सेटा होची कौन ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल है माने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माने कौन माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो गोटे फॉस्फोलिपिड लेयर अछि बुझला कौन कहली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माने किछि पार्ट ता भीतर को पसी पारिबो किछि पार्ट ता भीतर को पसी पारिबो नै किछि जिंस पसी पारिबो किछि जिंस पसी पारिबो नै हला सेति सेमी परमेबल आ फुल्ली परमेबल माने सब जिंस पसी पारिबो सेमी परमेबल माने किछि जिंस पसी पारिबो कि जिंस एला सेल मेम्ब्रेन किछि जिंस को एलाउ करिवो कि जिंस को एलाउ करिवो नै बुझला कौन कहली सेति सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हला तापर आसला वैक्यूल हेल्प्स तापर कौन आसला ना वैक्यूल कादर हेल्प करे हला वैक्यूल कादर हेल्प करे वैक्यूल हेल्प करे स्टोरेज रे से कौन करे ना फूड मटेरियल को स्टोरेज करे क्लोरोफिल स्टोरेज करता है आउ अनेक जिनस वाला स्टोरेज करता है ये कादर हेल्प करे ना क्या को खास करे ना फूड मटेरियल को कौन करे ना स्टोरेज करिथा फूड मटेरियल को स्टोरेज करिथा हला वेस्ट प्रोडक्ट मध्य वेस्ट प्रोडक्ट को मध्य ये कौन करता है ना स्टोरेज करिथा ये कौन करता है ना स्टोरेज करता है किए ना वैक्यूल मन रखता प्लांट रे वैक्यूल केते परसेंट निए प्लांट रे वैक्यूल 90% प्लांट रे हला सॉरी हला प्लांट रे देखो प्लांट रे हला प्लांट सेल रे वैक्यूल होची 90% माने प्लांट सेल सेफ किए दिए ना ये वैक्यूल ही देता है हला आ वैक्यूल रे काम कोन ना से ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करे हला ऑस्मोटिक प्रेशर को से कौन करे ना बैलेंस करिथा किए ना वैक्यूल ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है गोटे सेल रे से टर्जिडिटी मेंटेन करता है बुझला कौन कहली एनिमल सेल भी वैक्यूल अच्छी बहुत कम परिमाण अच्छी किंतु प्लांट सेल 90% रु एबव वैक्यूल ही जगह नहीं बुझला कौन कहली तापर आसला सेंट्रोजोम इज फाउंड इन हला सेंट्रिओल गोटे सेंट्रिओल एटा आ गोटे सेंट्रिओल एटा दुटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो रही है परपेंडिकुलर बा 90 डिग्री हो रही एटा एनिमल सेल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रोजोम ये कौन करिवार हेल्प करे ना सेंट्रोजोम कौन करिवार हेल्प करे ना एनिमल सेल रे से सेल डिवीजन करिवार हेल्प करे कौन ना सेल डिवीजन है सेल डिवीजन करिवार किए हेल्प करे ना सेंट्रोजोम सेल डिवीजन करिवार हेल्प करे बुझला कौन कहली तापर आसला कौन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन को आरएनए ना आरएनए बा राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिसिकी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिसिकी कौन तैयार होइचंदी ना राइबोसोम तैयार होइचंदी राइबोसोम कौन तैयार करे ना प्रोटीन फैक्ट्री हिसाब रे काम करे माने प्रोटीन फैक्ट्री माने से प्रोटीन सिंथेसिस करिवार राइबोसोम हेल्प करे बुझला कौन कहली तबसला सेल डिवीजन इज सोमैटिक सेल
आम आमर जी जेनेटिक सेल आउटे सोमाटिक सेल अच्छे सोमाटिक सेल माने कौन जोटा रिप्रोडक्शन में जो सेल हेल्प करे ना है से कौन हम माइटोसिस हम ना से कौन हम खाली माइटोसिस हम माइटोसिस माने कौन समस्त क्रोमोजोम नंबर 2n थी से 2n से 2n आ 2n सेल ही कन्वर्ट हो है किसी चेंज होनी यहाँ कौन ना माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन जोटा कह है इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है तापर आसला कौन क्रोमोजोम आर प्रेजेंट कौट प्रेजेंट रुए ना न्यूक्लियस भितर ही क्रोमोजोम थाए ना तार भीतर जीन थी डीएनए थी बुझला कौन कहली क्रोमोजोमटा न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी ना क्रोमोजोम अच्छी है आम मनुष्य केते जोड़ा क्रोमोजोम रे आम मनुष्यर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम तादर 22 जोड़ा कौन सोमाटिक सेल पे माने सोमाटिक कैरेक्टर आउ वन पेयर कौन सेक्सुअल कैरेक्टर पे है बुझला कौन कहली तापर आसला कौन 19 नंबर है फोटोसिंथेसिस अकर इन कौटी ना क्लोरोप्लास्ट भितर क्लोरोफिल पिगमेंट थी जहाँ कि लाइट ट्रैप कर तार भीतर सब एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुए जोटा कि फोटोसिंथेसिस हेल्प करे बा ओडिया में कह आलोक संश्लेषण ओडिया में कौन कह आलोक संश्लेषण आलोक संश्लेषण प्रक्रिया उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करे कौ ऑर्गेनेल हेल्प रे ना एटा प्लांट रे थिवो एटा एनिमल रे नथिवो क्लोरोप्लास्ट प्लांट रे गोटे ऑर्गेनेल थिवो जार ना हो क्लोरोप्लास्ट से कौन करे ना फोटो ता भीतर क्लोरोफिल पिगमेंट थिवो जोटा कि फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करिवो हला ऑर्गेनेल हैविंग इट्स ओन डीएनए कौ अंगीकार कौ कोष अंगीकार तार निजस्व डीएनए अच्छी ना ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया तार निजस्व डीएनए अच्छे लाइसोजोम निजस्व डीएनए नहीं राइबोजोम निजस्व डीएनए नहीं वैक्यूल निजस्व डीएनए नहीं है ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर बुझला कौन कहली 21 नंबर सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड है फॉस्फोलिपिड माने लिपिड एंड प्रोटीन लिपिड थी है प्रोटीन भी थी है बुझला कौन कहली से सिंगर और निकोलसन गोटे मोजाइक माने गोटे मॉडल देते फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौ मसीह ना 1972 मसीह फ्लूइड मोजाइक मॉडल देते सेल मेम्ब्रेनटा से लिपिड और प्रोटीन रे तैयारी है प्रोटीनटा कौन करे ना ताको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करे फ्लूइडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ताको प्रोवाइड करे बुझला कौन कहली तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस भितर जो फ्लूइड जिनसटा रहा है कौन कह न्यूक्लियोप्लाज्म कह आ सेल भितर जो लिक्विड जिनसटा रहा फ्लूइड पार्टा रहा कह साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल बहुत सारा एग्जाम पढ़ी छुआ मैंने भी जानी प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट रे सेल वॉल अच्छी एनिमल सेल वॉल नहीं है ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है तापर आसला 24 नंबर है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यूजिंग एनर्जी है गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी मैंने एटा सेल मेम्ब्रेन अच्छी एटा सेल मेम्ब्रेन धर एटी एटा हाई कंसंट्रेशन अच्छी एटा हूँ हाई कंसंट्रेशन अच्छी एटा हूँ लो कंसंट्रेशन अच्छी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जब एटा मूव कर एनर्जी दरकार नहीं किंतु लो रु जो हाई को मूव कर एनर्जी दरकार एटीपी गोटे दरकार एटीपी गोटे नेबू केतेटा एटीपी दरकार से तार कंसंट्रेशन लेवल उपर डिपेंड करे से हूँ कौन ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कौन कहते हैं ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिते हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को ऑब्जेक्ट माने गोटे सब्सटेंस मूव करे क्या देकी ना भाया सेल मेम्ब्रेन देकी मूव करे से विदाउट एक्टिव से जाए से कौन कह ना पैसिव ट्रांसपोर्ट कह जो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन को सब्सटेंस मूव कर कह एक्टिव से यूज हो कह एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुझला कौन कहली तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला ना ऑस्मोसिस अकर थ्रो है ऑस्मोसिस क्या देख अकर हम ना सिलेक्टिवली परमिएबल है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन देकी कौन हम ना ऑस्मोसिस हम है ऑस्मोसिस माने जानिक रखता एपटर वाटर अच्छी एपटर भी वाटर अच्छी है
बुझला कौन कहली एपटर वाटर हाई कनसेंट्रेशन अच्छी एपटर वाटर लो कनसेंट्रेशन अच्छी एपटर भी किसी सल्यूट अच्छी एपटर किसी सल्यूट अच्छी है वाटर क्या देकी मुव कर ना वाटर एटी कौटी मुव कर ना वाटर एटी कौटी मुव कर वाटर एटी कौटी मुव कर ना जो वाटर हाई कनसेंट्रेशन लो कनसेंट्रेशन को मुव कर वाटर मुव कर सल्यूट पार्टिकल ये मुव कर ना ये वाटर कनसेंट्रेशन अच्छी अधिका अच्छे मैंने सल्यूट पार्टिकल कम थी ये वाटर एठी वाटर अधिका वाटर कम अच्छे मैंने सल्यूट पार्टिकल अधिका थी है वाटर कनसेंट्रेशन अधिकार कम ये सल्यूट मुव करें ना यहाँ हूँ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ हूँ ऑस्मोसिस टाक कह बुझला कौन कहली तापर आसला 26 नंबर है 26 नंबर देला आमोइबा शो आमोइबा कौन शो करे सेलुलार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहीं से गोटे कोषर तैयारी ना सेटा वन सेल एक कोष यूनिसेलुलार आम तो कह कौन कह यूनिसेलुलार है यूनिसेलुलार कह से कौन ना सेलुलार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तापर आसला 27 नंबर लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल को आम कौन कह ना प्रोटोप्लाज्म बोली कह कौन कह प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ओडिया कह आदि जीवक ओडिया आम कह आदि जीवक क्या नहीं प्रोटोप्लाज्म तैयारी क्या नहीं प्रोटोप्लाज्म तैयारी ना साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस न्यूक्लियस को नहीं कौन तैयारी ना आदि जीवक प्रोटोप्लाज्म तैयारी जोटा कि सेल जीवंत अवस्था बा प्रोटोप्लाज्म है आदि जीवक है सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू बैक्टेरिया को सेल थ्योरी कहीं बैक्टेरिया सेल अच्छी प्लांट सेल अच्छी एनिमल सेल अच्छी किंतु भाइरस तार गोटे यूनिक कैरेक्टर कौन से गोटे सेल जीवन एटा जो जड़ अवस्था थी बाहर थी तार जीवन नथिबो किंतु जो गोटे ऑब्जेक्ट भितर बा लिविंग ऑब्जेक्ट भितर पशिଯିव तार जीवन पलि आसो है तार भीतर रिप्रोडक्शन कर थ्रू आरएनए एंड डीएनए अल्सो है से कौन ना माने एटा सेल थ्योरी को एटा फॉलो करिवो नै ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है तापर आसला व्हिच ऑर्गेनेल मॉडिफाई प्रोटीन है व्हिच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज प्रोटीन प्रोटीन को ऑर्गेनेल मॉडिफाई करे गोल्गी एपार्टस हम है कही प्रोटीन और लिपिड को किए तैयारी करे प्रोटीन प्रोटीन को किए तैयारी करे ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को किए तैयारी करे लिपिड को किए तैयारी करे ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तापर इनको पैकेजिंग किए कर हेल्प करे पैकेजिंग कर किए हेल्प करे ना गोल्गी एपार्टस बुझला कौन कहली तापर आसला लास्ट क्वेश्चन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एटा तो समस्त जान सेल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को दबाई दो थैंक यू पिला माने।